where will be the Kavita ma'am in the next 5 years? To be the top richest in coming years of the India. और डेस्टिनी आपको कहीं भी थ्रो कर सकती है. Don't cry for it. By the way, when I entered your home, actually starting में वो positivity feel हुई because you have earned so many rewards and awards as well. This is just 10%. मेरे बेड के नीचे पूरा भरा हुआ है. I have That's no the thing, space. इतना सारा. No That's space. really fantastic, ma'am. You work hard. Just work hard. वो आपको eventually आता ही रहेगा. People will start recognizing your work. People will start giving you that kind of exposure. And I think I'm blessed that way that people have recognized me also on the platforms. Okay. So मैं फाइनेंशियल के बारे में बहुत सारा आपने चीज़ें बताई. दैट्स ट्रूली फैंटास्टिक. सो बेसिकली मैं फाइनेंस के पर्सपेक्टिव में और जानना चाहता हूँ. आज जो इंडिया और आने वाले 10 सालों में इंडिया रहेगा, मीन्स रियलिस्टिकली कौन सी इंडस्ट्रीज इंडिया में ज़्यादा ग्रो करेगी एज पर योर पर्सपेक्टिव्स? See, I'll tell you what every industry is doing good. And we're very fortunate, this is my personal opinion, we're very fortunate to have a prime minister that we have. And he should continue. We all should, ऐसा किसी को मतलब it's my personal opinion, it's क्योंकि I have seen the world जहाँ पे वो एरा भी देखा है जहाँ पे लोगों को अपना पेंशन लेने के लिए there was so much of corruption, कोई काम आसानी से होता ही नहीं. It was so much of juggle. And in last 10 years, the kind of India's growth that I've seen, my personal opinion, we need this leader. And यही leadership रहा तो we will have a golden days ahead. I mean, I'm sure कोई भी industry, हमें सिर्फ बोला जाता था पढ़ाई करो और नौकरी ढूंढो. Now we have entrepreneurs coming up, जो actually हमारे roots है. हमारे roots बोलते ना किसी के यहाँ काम करने का mindset नहीं था इंडिया में. हमारे खुद के काम करके और अपना इंडिपेंडेंट वाला was a culture that we come from. That's a background that we come from. कहीं ना कहीं ब्रिटिशों ने हमें उनके नीचे करके करवा दिया और वही कल्चर सर्विस कल्चर चलता रहा है. But today, fortunately, we under the leadership of Shri Prime Minister Narendra Modi ji, we are blessed to have this young generation getting into a zone जहाँ पे वो अपना खुद का कर सकते हैं. उनकी the kind of exposure he is giving on the financial or the kind of easy he is giving you on this thing. Again, I'm not promoting any party here. This is my personal view. As you asked, it's a personal view. I feel under his leadership, we all are growing well, and that should continue. And we should support strong leadership. And if this continues, we're good. We're really good. कोई इंडस्ट्री में नहीं है. आप रोड्स देख लो, एयरपोर्ट्स देख लो, आप रेलवेज देख लो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, आप मैन्युफैक्चरिंग देख लो, आप स्टार्टअप्स देख लो, कहाँ हमने ग्रो नहीं किया है. हर इंडस्ट्रीज में आप अपना भारत का जो पुराना कल्चर है जिसको बंद कर दिया, आपके मंदिर द काइंड ऑफ ग्लोरी दैट इज कमिंग बैक, वी डोंट वांट दैट. वी ऑल वांट दैट, राइट? हमारी खुद की आइडेंटिटी इतनी स्ट्रॉन्ग रख के हमारा आयुर्वेदा, हमारा योगा, वी हैव सो मच विच इज़ रियली गुड. हमारी संस्कृति विच इज़ सो गुड, जो हमने बिल्कुल ऐसे साइड कर दिया था कि संस्कृति क्या, हिंदी क्या आयुर्वेदिक, क्या योगा, दिस वाज समथिंग दैट वी नेवर पेड अटेंशन. बोलते ना, आप अपने सोने के अंडा रख के आप नकली प्लास्टिक के अंडे के साथ खेल रहे हो. नाउ वी वांट टू गेट दैट गोल्डन एग विद अस रादर देन जो. तो हमारे पास जो साइंटिस्ट हमारे पास है, हमने कितना स्ट्रगल किया है, इसरो ने कितना स्ट्रगल किया है टू गेट एनीथिंग ऑन द लॉन्च. आप देख लो ना, आप खुद एक्सपीरियंस करो द काइंड ऑफ लॉन्चेस वी हैव डन. सो एक इंडस्ट्री नहीं है, इट्स अ ग्लोबली वी विल ग्रो. इंटरनेशनली हम इतने अच्छे पोजिशन्ड हो गए हैं. And that is only, see, when I travel abroad, when I see the colleagues of mine or friends of mine giving me respect because I am placed well, ये किसी की मेहनत है ना. we have earned because of somebody worked and made it he positioned India in such a fashion that everybody, I don't see any other leader to come up so strongly and bring 10 सालों में जो हुआ है,
आपके 60-70 सालों में जो नहीं कर पाए, इमेजिन ऐसा लीडर हमको स्टार्टिंग में मिलता, तो आज इंडिया वो और इतने कहाँ होते। कहाँ अगर इस सिलेक्शन में अगर वी डू नॉट चूज हिम, विल बी दी no compensation, Okay. we will lose the best One of of our the life. best leader. Yeah, So so definitely voting आ रही है, it's your choice. but आपको किसको see, vote करना open your eyes and see what है? the growth side is talking about and the fact side are talking about, and everything is visible. कोविड में जिस तरह सपोर्ट हुआ, जिस तरह हमने खुद की वैक्सीन बनाई, नहीं हो पाती थी। आई मीन जिस तरह का उस टाइम पे, फिर कोविड के इसमें भी होता था कि अमीरों को दे दो पहले, फिर गरीब लोग, स्टेज पे गवर्नमेंट हैज सपोर्टेड अ लॉट। एवरीवेयर द वे हमारे लोग बाहर फंसे हुए थे उन्हें लेके आए, यू नो वॉट एवर हैपन्ड इन दिस लास्ट so many years is amazing, and that gives us a golden chance कि हम आगे, I'm sure our economy will rule, and fortunately we are having a young blood, more of young blood also, so which is a good sign. So good leadership under, and you have a good working population is a good combination. Okay. You know. So ma'am, let's go beyond that. Not in the sense of company perspectives, as you are senior vice president of Aditya Birla Capital. So basically, मैं generally पूछ रहा हूँ, not in the company perspectives. How do you feel as a senior vice president? मैं वो जॉब करती हूँ जो मुझे पसंद आता है, या फिर जो इट इज़ समथिंग दैट आई लाइक डूइंग, तो so I enjoy working because it's my work, and as I said, I have been into the money from the beginning. Numbers is something that I like, so I like that. So you like your job and definitely you are doing your 200%. I'm sure my bosses say that. So my last question is, where will be the Kavita ma'am in next 5 years? Where do you see yourself? Where do you imagine good yourself? Just question. an approx answer. Good question. Absolutely aspirational, yes. Without a second thought, yes, of course, an aspirational girl that way. I've been invited from a lot of parties to join, but I'm too young as of now to get into any political party. To ask me, I would like to be the top richest in coming years of the India, Fantastic. a top Fantastic. corporate. Yeah, so I would like to see myself as the top richest of India or the world soon. I don't know how many years it will take, but for surely that's my one of the dream. The second dream, of course, the Prime Minister of India. That is there at the back of mind, and somebody is put, somebody. I mean, it's like you want to. आप खुद जब successful होते हो, you want to make things right, and I see my leader is really doing, and somehow he's inspired me to. पहले तो लोग political से बहुत दूर भागते थे, पर अब जब मुझे I get lot of calls from the parties saying that to join us, elections are coming. I've restricted myself. एक 10 साल के बाद I would rather, when I'm comfortable, maybe future में, you never know. You never know, but aspiration, you just asked me about the aspiration, so aspiration definitely is there, but you never know. Again, what you think जो करना चाहते हो और डेस्टिनी क्या लेके जाती है, we don't know. आपके लाइफ में तो इतने सडन चेंजेस आए हैं जो कि मींस आप जो सोचे कुछ और थे, कर कुछ वही और। थी, अभी अब पता चल रहा है कि आई वांट टू बिकम समथिंग, कुछ और हो जाए, यू नेवर नो, बिल्कुल यू नेवर नो. सो आई विल बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉट एवर लाइफ ब्रिंग्स टू मी, एंड आई विल हैप्पीली एक्सेप्ट इट. ठीक है, मैं आईएएस बनना चाहती थी पर आज बैंकर बन गई, ठीक है, मैं कुछ और करना चाहती थी, सो इट्स फाइन, बट वॉट एवर आई एम डूइंग, आई एम कंटेंट. आई एम रियली कंटेंट बिकॉज आई एम हैप्पी ऑन दैट. क्योंकि मैम बेसिकली यू आर हैप्पी, और जब खुश है तो फिर क्या ही। क्या बट आई टेल यू, कुछ भी चीज़ आसानी से नहीं आता है. टू कंक्लूड दिस सेशन, आई वुड से 2-3 थिंग्स आई विल ऑलवेज एडवाइस एवरी लिसनर हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपने साथ ईमानदार रहो. आप आप एडवाइस क्या देना चाहते हैं? मैं बिल्कुल बोलूँगी भी अपने साथ एकदम ईमानदार रहो आप, क्योंकि दैट एंड आप जो भी रोल कर रहे हो, फादर का रोल कर रहे हो, बच्चे का रोल कर रहे हो, स्टूडेंट का रोल कर रहे हो, कल आप हस्बैंड का, जो भी रोल, प्लीज़ बी गिव 200% टू इट. ओके, कभी वो रिग्रेट ना रह जाए कि ये नहीं कर पाया. ट्राई योर बेस्ट to be a best student, try your best to be a best good friend, try your best to be a good colleague of someone, try best to be a good son of your father.
ट्राई बेस्ट टू बी अ गुड क्या बोलते हैं सिबलिंग ऑफ, मतलब अच्छे भाई बहन बनो आप, अच्छे कोशिश कर, देखो आप 200% आप उस चीज़ में सक्सेसफुल तो नहीं हो सकते हो, पर कोशिश तो आप कर सकते हो। आपको पता है, शायद लोग आपको ना बोले कि यू आर बेस्ट, पर आपको पता है कि आपने एफर्ट्स डाले हैं। आप ट्राई, बी अ गुड ब्रदर, बी अ गुड सन, बी अ गुड, इफ यू हैव अ गर्लफ्रेंड दैट्स फाइन, आई मीन बी अ गुड बॉयफ्रेंड, बी अ गुड स्टूडेंट। तो आप उस आपके रोल ईमानदारी से करो, डोंट चीट ऑन योर रूल्स, ठीक है। आप एज अ यू नो माई फादर एक्सपेक्ट्स टू दैट माई, अभी वाई आई से दिस, वाई वी प्रे सो मच टू राम, वाई, बिकॉज वी एक्सपेक्ट। तो मैं हमेशा एक क्वेश्चन आ रहा था मेरे दिमाग में कि राम जी को हम इतना क्यों मानते हैं, बिकॉज ही हैड एन इंटीग्रिटी विद हिमसेल्फ, वो अपने आप हर रोल वो ईमानदारी से किए हैं। So he was a, मतलब we all, if we want to accept Ram, we want Ram like to be Ram. So what is it that we should do? You should be truthful to yourself. You should do your roles एकदम ईमानदारी से। आप अपने दोस्तों को कमिटमेंट देते हो, डू इट। आप अपने टीचर को कमिटमेंट, डू इट। आप शायद ना कर पाए, बट डोंट लाई, डोंट मेक स्टोरी, बी वेरी ओपन कि सॉरी यार नहीं हो पाया, सॉरी सर नहीं हो पाया, मतलब उसको घुमाने का ट्विस्ट ट्वीक, don't make life complicated, keep it simple. It might hurt somebody, it might they might not be very comfortable, but सच्चाई जीतती है, and we all say सत्यमेव जयते, yes, when you're truthful, you might see today, if someone says I'm successful, I feel कि इससे ज़्यादा शायद मुझे successful हो सकती थी। शायद कुछ चीज़ें जब आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हो तो कुछ चीज़ें नहीं होती है, बट इट्स फाइन। एंड ऑफ द डे आप वो बैगेज लेके नहीं चल रहे हो। सो आप अपने रोल्स पे ईमानदार रहो, अपने साथ ईमानदार रहो, कल्चर्ड रहो। कुछ गलत करने से, मुझे ये मिला नहीं करके गम करने से अच्छा जो है उसमें मैं अच्छा क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और हमेशा आप हमेशा सोचना, जो मैं सिचुएशन में उससे कई ऐसे हज़ारों करोड़ों लोग हैं जो आपकी सिचुएशन में आना चाहते हैं। यू आर डोंट थिंक कि मुझे ये मिला नहीं, थिंक मुझे कितना मिला है जो बहुत रुके। आप जिस 90s में थे, उस 90s में बहुत सारे, बाय द वे कहना नहीं चाहिए, बट लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया करते थे पेरेंट्स एंड ऑल अदर स्टफ्स। बहुत सारा मींस लड़कों को दे दिया जाता था, बट लड़कियों को उतना एट अ स्पेसिफिक पॉइंट पे इग्नोर किया जाता था। एब्सोल्युटली। आपने उस स्पेस से करके इतना सारा कुछ अचीव किया, दैट्स ट्रूली फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच। दैट्स ट्रूली फैंटास्टिक मैम। सो डेफिनेटली आज के जो गर्ल्स के यूथ है, जो बोलना चाह रहा हूँ मैं, यूथ ऑफ गर्ल्स, सो आप उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे इस वीडियो के थ्रू, जो ये चीज वो जाने और उसकी कदर करें, हाउ दे गेट अ फ्रीडम फ्रॉम द पास्ट, जो पहले नहीं था जो अब है। रादर आई वुड नॉट से कि कंपैरिजन करो आप उस एरा को, इस एरा को कंपेयर नहीं करते, क्योंकि वो कंपैरिजन कभी दिमाग में बैठेगा ही नहीं। उनको लगेगा मुझे क्या लेना देना, आपकी लाइफ थी, आपने वो जर्नी जी, मेरी लाइफ है, मेरी जर्नी जी रही हूँ। फैक्ट ना, अगर आज मैं अपने बेटे को बोलूँगी कि हमने ऐसे की, तो बोलेंगे तो क्या करें भाई, हमारे पेरेंट्स हमको जब बोलते थे कि हमने तो ऐसा पढ़ा था, क्या करें, हमको मिला है। तो सो आई वुड से कि लेट्स नॉट कंपेयर, बट आई विल से कि आज भी कंपटीशन कम नहीं है बच्चा। आई विल टेल यू, अगर आप सोचते हो कि आज भी लड़कियों के लिए बहुत ईजी है, तो आज भी ईजी नहीं है। अगर आप द रेशियो, अगर आप कोई भी कंपनी में रेशियोज देखो, आप काम करने का रेशियोज देखो, पढ़ाई का रेशियो देखो, ऐसे गर्ल इज स्टिल नॉट कम्प्लीटली फ्रीडम नहीं है जिस तरह लड़कों को मिलता है। अगर आप सोच रहे हो कि आज बहुत फ्रीडम है लड़कियों को, तो नहीं है। the quantum of girls who are really lucky are still very less. जो quantum of women who are very lucky is still very less. आज भी हमारे इंडिया में, या because of the society we have, we still have lot to bridge upon. बहुत सारा ब्रिज करना बाकी है। आप मैं जब अपने आप को ही अपने बैंकिंग सेक्टर में ही देखती हूँ, when we have meetings, I see the girl का percentage is only 10%, 15%, and you have male 80% sitting next to you in the same competition. So ऐसा नहीं है कि life is very easy today also, because क्योंकि आप लड़की के लाइफ में आप शादी करते हो, बच्चा हो जाता है, तो you have commitments at home also.
तो यू कांट से 10 o'clock बैठोगे तो आपका परिवार डिस्टर्ब होता है, पर मैन कैन से 10 o'clock, राइट? मैन आप सुबह उठते हो, व्हाट इज ईजी फॉर अ मैन टू उठेगा, your wife or maid will get everything and you will get ready and will go off. Can a woman do that? If I have to tell my story, I have to get up at 6 o'clock, 5:30. My son goes to school by 7:30, so I have to get up and be in the mother role. I have to make sure that he reaches bus stop by 7:30. उसका सब देखना पड़ता है. अगर मेरा कोई मेल कलीग होगा, you think he'll be getting up at 6 o'clock? वो उठेगा भी तो जाएगा वॉक के लिए, राइट? हिल गो फॉर अ वॉक, चाय पिएगा, वॉक पे जाएगा, या फिर वापस आएगा, देन ही विल गेट रेडी एंड विल कम. फॉर मी इट्स नॉट लाइक दैट. सो हमारे फॉर मोमेंट इट इज स्टिल अ लॉट ऑफ जगल व्हेन इट कम्स टू द वर्क स्पेस. ऐसा इतना ईजी मतलब इट इज़ नॉट बिकॉज वर्क स्पेस इज गिविंग यू दैट जगल. इट इज़ दिस टू मच ऑफ एक्सपेक्टेशन फॉर अ वुमन ऑलरेडी. आपको घर पे खाना भी बनाना है, आपको ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी, ये सब चीज़ें करनी है, आपको फैमिली की सब चीज़ें देखनी, घर की सारी चीज़ें देखनी, फेस्टिवल होता है तो सबको देखना है, रिलेटिव्स के साथ को आपको मेंटेन करना है. आप अगर वही मेरा मेल कली होगा, बहुत कुछ आपको मेंटेन करना है, एंड देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ द किड्स. इतना आसान आज भी नहीं है फॉर अ गर्ल, बट येस शी इज़ अ शक्ति एज दे से. आप एक मेरे ही कलीग को अगर मेरे साथ जो काम कर रहे हैं उनके साथ रखो, मेरी जर्नी रखोगे, तो ऑब्वियसली विल फाइंड कि वो 2 दिन में पैनिक हो जाएगा, उसको मेरा रोल करना होगा, तो मुझे लगा आई कैन डू इट, यू नो. सो वी बीन गिवन दैट काइंड ऑफ पावर टू हैंडल डिफरेंट थिंग्स. सो आई विल से टू द गर्ल्स ओनली वन थिंग कि डोंट थिंक द गाइज आर बेस्ट और गर्ल्स आर बेस्ट. डोंट हैव अ कॉम्पिटिशन इन ऑन. Be the best of what you want to do in life. Concentrate on that and be on the goal. Life is not bed of roses. और सक्सेस ऐसे सेकंड्स में किसी को नहीं मिलता है. ऐसा कोई सक्सेस मिला तो वैसे चला भी जाता है. तो इजी सक्सेस, ओवरनाइट सक्सेस कभी किसी को नहीं मिलता है, और मिला रुकता नहीं. आपको बिल्ड करना पड़ता है. आपको बिल्ड करना पड़ता है, और वो बिल्ड करने में मेहनत लगती है, और आपको मेहनत दिखाने की ज़रूरत नहीं है. व्हाट आई फील, आई हैव नेवर बीन श्योर. आप रिजल्ट दिखाओ. लोगों को नहीं पता कि आई शॉक विथ माई रिजल्ट टू पीपल. तो आई दे कीप वंडरिंग क्या क्या करती है, पर सारा कुछ कैसे कर लेते हो? अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो कर लेते हो. आज अपने स्टडीज़ के साथ आप यहाँ बैठे हो, कैसे कर लिया आपने? ये आपका पैशन है. सो आपका इंटरेस्ट रहता तो आप मैनेज हो जाता है. अगर आप बिना इंटरेस्ट के कर रहे हो तो उसको फिर वो रॉकेट है. तो आप वो करो जो आपका इंटरेस्ट है, तो फिर सब सी मेहनत तो लगती है. आई एम टेलिंग यू अर्जुन अगेन, बहुत मेहनत लगती है. अगर आप मेरा स्केड्यूल देखोगे, मतलब अगर आप एक दिन मेरे साथ बिताओगे, तो से मैम सॉरी मतलब ऐसे बहुत लोग हैं जब सडनली दे कम एंड फ़ोन बहुत दिन से मैंने उनका अटेंड. आई हैव मैसेजेस 1500 2000 मैसेजेस पेंडिंग. जैसे कि आप हमारा रिप्लाई नहीं करते, हम करते. एक दिन आप मेरे साथ रहना, फिर देन यू टेल मी, आप आ जाओ, एंड फिर वो 2-3 घंटे देखते हैं, फिर समझ जाते हैं थैंक यू, ये आप ही कर सकते हो, हम वी वुड लाइक टू स्टे अवे. सो इजी कुछ नहीं होता है, बट डिफिकल्ट भी कुछ नहीं है. या सो मैं थोड़ा जस्ट अभी से क्वेश्चन आ रहा है, इसमें पूछना भी चाहता हूँ आपको. मैं आपको थोड़ा साइकोलॉजी एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ कंपनी के पर्सपेक्टिव से. मीन्स कोई भी, जितने भी कंपनीज में अभी तक आप रह चुके हैं, अगर मैं आपके हायरिंग प्रोसेस की बात करूँ, स्पेसिफिक पॉइंट, आप किसी टाइम पे तो किसी बहुत लोगों को हायर किए होंगे. सो आप किस पर्सपेक्टिव से हायर करते हैं? नॉलेज, कॉन्फिडेंस. सी योर स्कूल के मार्क्स तो आपको डेफिनेटली, मार्कशीट आपको डेफिनेटली प्रूव करना पड़ता है, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट स्टेट वेयर द योर HR फिल्टर्स एंड गिव्स इट यू. आप अगर बोलेंगे मैं स्कोर नहीं करूँगा पर जाके तोड़ के इंटरव्यू दूंगा, ऐसा नहीं होता है. यू आर डेफिनेटली, आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, आपको स्कोर बोर्ड पे तो आना पड़ेगा. बेसिक, दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग. पर उसके बाद आपको, अगर जिस इंटरव्यू में, अगर मैं किसी फार्मा कंपनी में जा रही हूँ तो फार्मा का इन्फॉर्मेशन पूरा होना चाहिए. अगर मैं किसी एडवर्टाइजमेंट कंपनी में जा रही हूँ तो एडवर्टाइजमेंट कंपनी के बारे में पता होना चाहिए. कहीं बैंक में इंटरव्यू के लिए जिसमें जा रहे हो उसके बारे में पता तो होना चाहिए. बिना पता है रोल्स एंड, और देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड करियर. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ जॉब 9 to 5 कर लिया आपने, 9 to 6 जॉब कर लिया, और आगे आपको कोई पर्सपेक्टिव नहीं है कि मुझे इधर रहना है, नहीं रहना. आपको सिर्फ पैसों से मतलब है. दैट इज जॉब. व्हाट इज करियर? आई नो द पाथ. मैंने यहाँ से मेरी गाड़ी स्टार्ट की तो मुझे पता है आगे मुझे कहाँ तक पहुँचना है, मेरा गोल क्या है, इस कंपनी में कहाँ तक ग्रो करूँगा, या मैं अपनी लाइफ में इस इंडस्ट्री में कहाँ तक ग्रो. ये आपका माइंडसेट स्टार्टिंग में ही होना चाहिए. अगर आप लोग कुछ पढ़ाई कर रहे हो और उसके बाद आपको डिसाइड करने का पोजीशन आ जाता है कि मुझे ये करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि
मुझे इसमें कहाँ तक मैं जा सकता हूँ, मेरे को कहाँ तक पहुँचना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि ग्रेजुएशन करते थे, उसके बाद इंटरव्यूज ढूंढते, और जो इंटरव्यू में क्रैक कर लिए वो उसमें चल पड़ते हैं। दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक किड्स डू। आज वो फिर वो जॉब ढूंढते हैं, वो करियर नहीं ढूंढते। तो आपको जॉब और करियर में, आप थर्ड ईयर में आते ही आपको ये समझ में आना चाहिए कि मुझे जॉब नहीं करना, मुझे करियर ढूंढना है। तो मैं उस जगह पे इंटरव्यू दूँ जहाँ मुझे पता है कि वहाँ जाना है, जहाँ इंटरेस्ट है और हाँ पैशन है, उसमें ही that's it. जाओ। और उस जहाँ पे जाओगे उसके नॉलेज के साथ जाओगे तो फिर हारने का सीन क्या है, Course. So, राइट? आपको पता है कि आपको तैरना है, राइट? तो आप अच्छे से तैरोगे ना। आपको अगर सिर्फ पैसे कमाना है और जॉब करना है, तो यू शुड बी क्लियर कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे जॉब करना है, मुझे करियर बनाना The है। goal should be वो clear. गोल शुड बी वेरी वेरी क्लियर। क्योंकि हमारे टाइम पे ये किसी ने हमको नहीं बताया था कि आप बिल्कुल नहीं बताया था हमको। तो अभी भी शायद बहुत बच्चों को नहीं पता होता है। आप अपना कॉलेज खत्म करते हो, फिर इंटरव्यूज ढूंढते हो, फैक्ट ऑफ लाइफ। Yeah, of जो course. बेस्ट इंटरव्यू आ गया, जो बेस्ट कंपनी का ऑफर आ गया, वहाँ जब भी Accepted. आप वो करने लग जाते हो। पर जब करते वक्त ये कभी भी आपके बैकमाइंड में आता नहीं है कि मैं अगले 5 साल 10 साल या अगले 20 साल जब मैं रिटायर हूँ तो मैं इस कंपनी में या इस इंडस्ट्री में मैं कहाँ तक जाऊँगा। ये क्लैरिटी के साथ आप अपने काम में उतरे और अपने जॉब इंटरव्यू दें, या आप अपने करियर को चूज़ करें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट डोंट गो इन द मार्केट टू सर्च जॉब्स। फिर पैसा छापने का मशीन है। एक पॉइंट में आप थक जाओगे, फिर बोलोगे ये मज़ा नहीं आ रहा। पर आप जब अपना पैशन ढूंढते हो फिर अपने आप मज़ा आता है, क्योंकि मजा आएगा ही, फिर खुशी भी होगी, that's खुशी, it. क्योंकि यू नो कि Simple मेरा fact ये है. है। अगर आप कल को सपोज अब मेडिकल का स्टूडेंट है, वो पढ़ने के बाद बोलता है कि नहीं मुझे कुछ अभी बहुत MBA चाय वाला, Definitely. वाई Fully ये अलग. पूरा वो क्यों क्यों उसने चूज़ किया? क्योंकि उसको ही और there वो are क्यों lot of examples. आज वी आर ब्लेस्ड कि पीपल हैव अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पैशन, और पीपल आर अलाउिंग, पेरेंट्स आर अलाउिंग। आपकी जनरेशन लकी है कि पेरेंट्स आर अलाउिंग दैट स्पेस कि कर लो आपके जो मन का है। हमारे टाइम पे ऑप्शन नहीं था। यू आर आइदर अ डॉक्टर, इंजीनियर और अ टीचर और अ लॉयर और अ बैंकर। ये 5-6 प्रोफेशंस ऐसे थे जो सेट थे, जो सोसाइटी में रेप्यूटेड है, यही करनी है आपको। Definitely. तो अब ऐसा नहीं है, यू कैन एक्सप्लोर, यू कैन टेक चांसेस व्हाट यू वांट टू बिकम। Definitely. मैं भी इस पे ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आई हैव टेक मोर देन ओवर अराउंड 12 इंटरव्यूज येट विद इन 1 मंथ। तो बेसिकली मैं भी इतना लग गया कि जो कैरियर है और जो स्किल्स है, इट डजंट मैटर। मीन्स कैरियर आप कुछ और रहे या करना कुछ और है, डेफिनेटली वो मैटर ही क्लैश नहीं करता है। और वो क्लैश कर जाएगा, और आप कभी आपको मज़ा नहीं आएगा। फिर वो टाइम क्लिक करता रहेगा कि 6 बज गया, मुझे घर जाना है। अगर आप अपना काम एंजॉय करते हो, अभी हम ही देखते हैं यू आर एंजॉइंग द इंटरव्यू, और इंटरव्यू एक्सीडेंट मोर देन 1 आवर। Yeah. सो यू आर लविंग दिस पैशन, दिस इज योर That's the समथिंग दैट thing. यू आर लविंग योर जॉब। तो इफ यू डोंट लव, देन आप बोलोगे मेरे ये 15 को मिनट में निपटाना चलते था हैं, निपटाना था निपटा चलते हैं करके। सो इफ यू लव समथिंग यू आर डूइंग, देन यू विल एक्सील इन दैट, एक्सेल करोगे आप ऑटोमेटिकली। So my takeaway, what I would give you takeaways is, again I'm telling you, give 200%, be true honest to yourself, be knowledgeable about whatever is going around, okay? Choose the profession carefully, thinking this is going to be my lifetime career, you know, इसमें मुझे जाना है तो मैं यहाँ तक पहुँचूंगा या पहुँचूंगी। Definitely, इसका बेस्ट और एग्जांपल आई वांट टू ऐड दिस, सचिन तेंदुलकर डेफिनेटली 10th बोर्ड में आज जो फेल है, आज फर्स्ट चैप्टर 10th का बोर्ड पे, उन्हीं का सचिन तेंदुलकर का ही है। दैट्स इट। तो और दिस इज नथिंग इम्पॉसिबल। और आपको जब और डेस्टिनी आपको कहीं भी थ्रो कर सकती है। डोंट क्राई फॉर इट, उसके लिए रोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसमें बेस्ट कैसे आप दे सकते हो, आपको कहीं पर भी थ्रो किया, उसमें आप बेस्ट कैसे दे सकते हो इज़ व्हाट यू शुड ऑलवेज लुक एट। कि ठीक है, मुझे ये सरप्राइज़ मिला है ना, इसको मैं बेस्ट कैसे करके दूँ। लेट मी सरप्राइज द गॉड ऑल्सो कि आपने ये दिया है, मैंने इसको अच्छा करके दिया है। एंड टेक योर फैमिली टू द नेक्स्ट लेवल। आपके पेरेंट्स ने एक लेवल पे ला के दिया है, आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। इट शुड बी योर एम विद इन। एंड in all I think your confidence, your integrity and short term success नहीं होता है। डोंट एवर थिंक कि ये सक्सेसफुल हो गया। सबकी लाइफ की जर्नी अपनी है। सम विल बी सक्सेसफुल एट वेरी अर्ली एज, सम विल टेक टाइम टू बी सक्सेसफुल। तो डोंट पैनिक। हमारा सबका लाइफ साइकिल इज गोइंग टू बी डिफरेंट। गॉड हैज़ डिसाइडेड कि कब किसको कब किस टाइम पे सक्सेस देना है।
तो लेट द जर्नी फ्लो, फ्रस्ट्रेट नहीं हो, एंजॉय योर जर्नी ऑफ लाइफ, enjoy this journey of life and don't panic कि उसको इसको देख के पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर मैंने उस दिन, अगर मेरे प्रिंसिपल ने बोला नहीं होता और मैं वो पैनिक मोड पे होती, मैं फ्रस्ट्रेट होके I would have collapsed just because my principal gave me that piece of advice saying that give the best in wherever you are. आज I am sure I am done better than the science friends of mine or commerce friends of mine. अगर मैं बोलती मुझे आर्ट्स मिल गया, my life is over, I will not do anything, तो उनको उस टाइम पे सक्सेस था कि दे गॉट साइंस एंड आई वाज पुश्ड, बट आई मीन यू डोंट हैव टू कंपेयर योरसेल्फ, ठीक है। दैट्स रियली फैंटास्टिक। आपके जो लाइफ लेसन्स है ना, उससे हम ज़्यादा सीख सकते हैं, आपके पर्सनल लाइफ लेसन्स ही बहुत है। डेफिनेटली बहुत लोग पॉडकास्ट करते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, मतलब जैसे अभी 5-6 लोग और भी आएंगे, आपका पॉडकास्ट लेंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे, बट द थिंग इज मैं पूछना चाहता हूँ आपको मेरे से कुछ पूछना है, मैं तो बहुत सारा चीज़ें आपको पूछ चुका हूँ, आपको जो पूछना वो आप लोगों को क्या पूछे। यंग जनरेशन से आई वुड ओनली से दैट यू नो रास्ते बहुत सारे आते हैं। अच्छा, इफ़ यू आर गिवन 10 डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ होंगे, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, अच्छे बुरे ऑप्शंस होंगे, तो आई मीन व्हाट इज़ द माइंडसेट ऑफ टुडेज जनरेशन? आप लोगों के नया जनरेशन सोचता क्या है? व्हाट इज़ द एम्बिशन गोल दे हैव? जैसे आपने बोला आज की लड़कियों को कंफर्ट है, मेरे एंगल से मैं बोलूँ तो आज भी कंफर्ट नहीं है, मुझे लगता है। मैं जानना चाहती हूँ कि टुडेज यंग जनरेशन, व्हाट इज़ द माइंडसेट ऑफ दैट यंग जनरेशन? क्या क्या सोचता है यंग जनरेशन? सो बेसिकली यंग जनरेशंस, इफ यू लाइक टू, मेरे पर्सपेक्टिव से, मेरे माइंडसेट के जो लोग होंगे, डेफिनेटली उनको कुछ बड़ा ही करना है। माई माइंडसेट इज अबाउट, मैं अगर 3rd ईयर ग्रेजुएशन करता हूँ, सो आई वांट टू डोंट मिस डू द जॉब, आई वांट टू गिव द जॉब। ये मेरा माइंडसेट है, ये पर्सपेक्टिव से। तो मतलब एवरीबॉडी हैज स्टार्टेड थिंकिंग कि मैं क्या कंट्रीब्यूट करूं, मैं खुद का क्या करूं। एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर्स फील्ड, you know, so there's a shift from the service to entrepreneurial. Yeah, okay, shifting like doing a job or creating jobs, create jobs. So there's a shift in the mindset. जैसे हम पहले सोचते थे कि बेस्ट ऑफ द कंपनी में जॉब ढूंढ ले, अब वो माइंड शिफ्ट खत्म हो गया और बोलते हैं कि अब हम बेस्ट कंपनी बनाएं। That's what you say, the mindset shift हुआ है। और इस सब का इवन गर्ल्स बॉयज, इट डजंट मैटर, एवरीवन। आई एम टेलिंग यू आज that's very nice how serious you see they towards politics, or they see towards country as a whole. Actually, I can't give the answer because I am not much have knowledge about the politics and all of that stuff. No, आप देश के बारे में आज क्या सोच रखते हो? देश के बारे में, इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट, एक्चुअली बेस्ट कंट्री। इंडिया में इवन बहुत सारे सिटीज मैंने कंट्रीज ट्रैवल किया। तो आज आई एम वेरी सॉरी, आज जो आपका जनरेशन है तो वो कंट्री के अफेयर्स में इंटरेस्टेड है या नहीं है, या कंट्री की ग्रोथ में इंटरेस्टेड रखता है या नहीं है? ये आज हम देखते हैं कि देश में क्या चल रहा है या नहीं देखते हैं? डेफिनेटली देखते हैं। जो मैं आज कर रहा हूँ, डेफिनेटली एट अ स्पेसिफिक पॉइंट पे आगे करके मिसकंसेप्शन सिर्फ, डेफिनेटली ये कंट्री को डेफिनेटली एट अ स्पेसिफिक पॉइंट पे बेनिफिट्स होगा ही होगा। तो मतलब यू से कि आज के जनरेशन हैज बिकम सीरियस टुवर्ड्स द कंट्रीज ग्रोथ, and you say कि there is a shift from a working class mindset to a mindset of creating jobs or entrepreneur, creating your own product. Okay. So that's it. I think that's a great thing to know about the young generation. Also good to know that the kids are now becoming serious towards the India's growth, which is very very important, क्योंकि देश के बारे में, देश के में क्या चल रहा है, ये बहुत बहुत important है, क्योंकि देश है तो हम हैं। Definitely. और हम हैं तो देश है। It's very simple. I think वो बहुत सारे कंट्रीज में है। क्योंकि why I asked you this question is because जब हमसे कोई पूछा होता, अगर 20 साल पहले हमने बोला होता अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि हमारे साथ, हमारे आसपास जो हमारे दिखता था उस टाइम पे ये होता था कि जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, करप्शन है, ब्राइबरी है, हमारे आसपास इतना कुछ ये बार बार भर दिया जाता था। अगर मुझे उस टाइम पे 20 साल पहले, 25 साल पहले किसी ने पूछा होता, मैंने ये बोला होता यार बहुत करप्शन है, बहुत देश खराब है, हमारा मिनिस्टर्स कुछ नहीं करते हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू सी द शिफ्ट कि आप लोग वेरी वेरी पॉजिटिव साइड पे हो देश को लेकर, कि यू डोंट सी द प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री, यू सीइंग द गुडनेस ऑफ द कंट्री, कि हमारे देश में अच्छा हो रहा है, एंड यू वुड लाइक टू सी द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड पॉजिटिव शिफ्ट दैट आई सी इन द जनरेशन। दैट्स अ गुड थिंग, एब्सोल्युटली।
जस्ट ट्रूली फैंटास्टिक में इतने सारे अवार्ड्स देखने के बाद भी अब मुझे समझ में आ गया इसके पीछे का कारण क्या है। जस्ट ट्रूली फैंटास्टिक आपका प्रोफेशनल जर्नी हो चाहे पर्सनल जर्नी, जस्ट ट्रूली इंस्पायरिंग दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड एवरी बॉय जो भी ये वीडियो देख रहा है डेफिनेटली उनको बेनिफिट तो होना ही है, बहुत सारा सीखोगे आप लोग। सो दैट्स, थैंक यू सो Thank मच you मैम so फॉर much. बिगिन Thank विद you. अ जर्नी स्टोरी, थैंक्स अ लॉट फॉर Thank you गिविंग so योर much.